إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحبا حصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك
فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. عزیز نوجوان بھائیوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، سامعات معززات ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق کے ساتھ فلسفہ قربانی کے عنوان پر چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل قربانی کے احکام و مسائل اور دیگر موضوعات پر گزشتہ خطبات جمعہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو جانور پیدا کیے ہیں، جنہیں اللہ کی راہ میں ہم قربان کرتے ہیں، ان جانوروں کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان جانوروں کا کوئی جرم نہیں ہے کہ جس کی پاداش میں ان کے گلے پر چھریاں چلائی جاتی ہیں۔ قربانی کا مقصد ہرگز بھی جانور کو تکلیف دینا نہیں ہے،
क़ुरबानी का मकसद हरगिज़ भी ईद वाले दिन जानवर को क़ुरबान करके उसके गोश्त से लुत्फ़ अंदोज़ होना, लज्जत वाली किस्म की डिशें खा लेना, ये क़ुरबानी का मकसद नहीं है। क़ुरबानी का मकसद बड़े से बड़ा जानवर लाकर अहले इलाका को दिखा देना कि मैंने इतना बड़ा और इतना मोटा, ताज़ा और इतना महंगा जानवर क़ुरबान किया, ये क़ुरबानी का मकसद नहीं है। क़ुरबानी का मकसद क्या है? क़ुरबानी का फ़लसफ़ा क्या है? क़ुरबानी हमें क्या सिखाती है? क़ुरबानी की असल रूह क्या है? आज के खुतबा जुमा में ये बातें इंशाअल्लाह हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि क़ुरबानी कहा किसे जाता है। किसी भी चीज़ को समझना हो तो उसके हुरूफ को समझ लिया जाए, बात काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। क़ुरबानी क़ुरबान से है, ये क़ाफ़ रा बा क़ुर्ब से ये मुश्तक़ है, और क़ुर्ब आप जानते हैं कि करीब होने को कहते हैं। जिस तरह के कुरान करीम अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, और इस दरख्त के करीब ना जाओ, तो करीब का मतलब उसके पास जाना है। इसी तरह दूसरे मकाम पर फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना, और ज़िना के करीब भी ना जाओ, तो करीब का मतलब पास जाना है, क़ुर्ब हासिल करना है। तो क़ुरबानी के हुरूफ भी यही हैं। इससे मकसूद क्या है? इस्तिलाही तारीफ़ फ़ुक़हा ने, उलमा ने इसकी जो की वो ये है, मा युतक़र्रबु बिही इलल्लाहि तआला मिन ज़बीहतिन व गैरिहा, क़ुरबानी वग़ैरह के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल किया जाता है। क़ुरबानी का जानवर ज़बह कर लेना काफ़ी नहीं, बल्कि उसके पीछे रूह क्या है कि मेरा और अल्लाह तबारक व तआला का जो फ़ासिला है, ये फ़ासिले ख़त्म हो जाएं और मेरे और रब के दरमियान क़ुर्बतें पैदा हो जाएं। गोया अल्लाह के करीब हो जाना, अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल कर लेना, ये असल रूह है क़ुरबानी की, कि ये सब कुछ हम क़ुरबान करके अल्लाह वाले बन जाएं और उसका क़ुर्ब इख्तियार कर लें, उसका पड़ोस हमें मिल जाए, उसके करीब हम हो जाएं। ये सारी की सारी क़ुरबानियाँ हमें ये पैगाम देती हैं। और इसके साथ ही बतौर तमहीद ये बात आपने समाअत फरमा ली, फ़लसफ़े के हवाले से ख़ास तौर पर पहली बात ये है कि ये क़ुरबानियाँ हमें इखलास का दर्स देती हैं, हमें इखलास का दर्स देती हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो खालिसतन अल्लाह के लिए काम करने का ये क़ुरबानी सबक देती है कि आप अपने अंदर इखलास पैदा कीजिए। कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो दरबारों के नाम के, मिज़ारों के नाम के, पीरों के नाम के, मलंगों और फ़कीरों के नाम के बकरे ज़बह करते हैं, मुर्गे ज़बह करते हैं और दीगर जानवर चढ़ावे के तौर पर चढ़ाते हैं। ये क़ुरबानियाँ हमें सबक देती हैं कि आपने इसको क़ुरबान करते वक़्त बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना है, अल्लाह के नाम पर इसको ज़बह करना है। इखलास, जो भी काम करना है अल्लाह के लिए करना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। रियाकारी के जितने रास्ते हैं ये क़ुरबानी बंद कर देने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमल इल्ला मा कान लहू खालिसन वब्तुबिग़ बिही वजहुहु। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ ऐसा अमल कबूल करते हैं जो खालिसतन अल्लाह के लिए किया जाए और अल्लाह ताला के चेहरे के दीदार के लिए किया जाए। मैं बड़े से बड़ा जानवर या छोटे से छोटा जानवर क़ुरबान इसलिए कर रहा हूँ ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने मुबारक चेहरे का मुझे दीदारी करवा दे। ये मकसूद है। और दूसरी बात क्या है कि ये क़ुरबानियाँ हमें तक़वा का दर्स देती हैं। तक़वा का मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों को हराम कर दिया
उनसे बच जाना। जो रज़ाइल हैं, बुरी सिफ़ात हैं, बुरी खसलतें हैं, उनसे भी दूर हो जाना। और एक अल्लाह तबारक व तआला ने जितने अखलाक और अच्छी आदत रखी हैं, हलाल चीज़ें हैं, उन्हें अपना लेने का नाम तक़वा होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। बड़े से बड़े जानवर तुम कुर्बान कर लो, अल्लाह तबारक व तआला को इन जानवरों का खून नहीं पहुँचता, अल्लाह ताला को इन जानवरों का गोश्त नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला को आपके दिल के अंदर जो तक़वा है वो चाहिए। अल्लाह ताला तो उस तक़वा को देखना चाहते हैं कि आपने खालिसतन अल्लाह के हुक्म से और उसी से डरते हुए कुर्बानी की थी, उसी से डरते हुए सारे काम किए थे। ये तक़वा, ये खौफ, ये खैशियत अल्लाह ताला को ये चाहिए। आपने देखा नहीं, हम जानवर कुर्बान करते हैं, खून उसका बह पड़ता है, वो किसी के इस्तेमाल में नहीं, और उसका गोश्त पोस्ट वो सारा हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अल्लाह ताला को क्या गया? कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला को जानवर से कुछ भी नहीं गया। हमारे दिलों के अंदर जो तक़वा है, ये अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुँचेगा। और तीसरा सबक क्या है? कुर्बानी हमें तौहीद का सबक देती है। दुनिया के सारे माबूदाने बातिला से बिल्कुल यकसू होकर, एक तरफ़ा होकर खालिसतन अल्लाह की इबादत का ये कुर्बानियाँ हमें सबक देती हैं। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सब कुछ। किसी और के नाम का जानवर ज़बह करना जायज़ नहीं, हराम है। जानवर ज़बह करना तो दूर की बात, आपने गली मोहल्लों में मुख्तलिफ़ गाय देखी होंगी, मुख्तलिफ़ बकरे देखे होंगे कि ये फ़लाँ पीर के नाम के छोड़े हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बि। हर वो चीज़ हराम है जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम पुकार दिया जाए, उसे ज़बह किया जाए या ना ज़बह किया जाए। कितने ही खाने पीने की अशिया ऐसी हैं जिन्हें ज़बह नहीं किया जाता, लेकिन वो किसी ख़ास पीर के नाम के साथ लगा देने से हराम हो जाती हैं। इसी तरह वो जानवर भी हराम हो जाते हैं जिन्हें अल्लाह के अलावा किसी और के नाम लगा दिया जाए। इस बात को समझिए, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम के अंदर अंबिया के नाम भी आते हैं, सहाबा के नाम भी आते हैं, औलियाउल्लाह के नाम भी आते हैं। अगर किसी नबी के नाम का कोई बकरा आपने छोड़ दिया, वो हराम हो जाएगा। क्यों? नबी भी गैरुल्लाह है, वो अल्लाह के अलावा ज़ात है। नबी अल्लाह की ज़ात नहीं है, अल्लाह के अलावा ज़ात है वो भी। और चौथा सबक ये है कि ये कुर्बानियाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत का इत्तिबा जो है, मिल्लत की इत्तिबा, उसका सबक सुनाती हैं हमें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़िए, सूरतुल क़सस के अंदर, सूरह इब्राहीम के अंदर, सूरतुल अंबिया में और दीगर सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सीरत बयान की, उसे पढ़ने की ज़रूरत है। अल्लाह के लिए बाप के साथ बाइकाट कर दिया, अल्लाह की महब्बत हासिल करने के लिए सारे घर वालों को छोड़ दिया, एक अल्लाह को राज़ी करने के लिए सारी की सारी कौम को नाराज़ कर लिया, एक अल्लाह को राज़ी करने के लिए सख्त से सख्त तकालीफ बर्दाश्त करना प्यारे पैगंबर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शेवा था। सारी कौम ने पकड़कर आग में धकेल दिया। और सिर्फ ये सारी कौम नहीं थी, ये छिपकली और दीगर इस तरह के हशरात, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस आग को फूंके मारकर सुलगा रहे थे कि ये आग मज़ीद बढ़ के और ये आदमी ज़्यादा इसके अंदर झुलस जाए। अल्लाह अकबर कबीर। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म दिया है, ये हिल में पाई जाए, हरम में पाई जाए। और बल्कि यहीं पर बस नहीं, आपने फरमाया कि जो पहली ज़रब पर इसको मार दे 60 नेकी अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगी।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ने की ज़रूरत है। तौहीद का, मैं कहता हूँ तौहीद का अलम बरदार था ये नबी। इतनी तौहीद इस पैगंबर के अंदर मौजूद है। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, ए नबी आपके फ़ज़ाइल अपनी जगह पर मुसल्लमा हैं, लेकिन इत्तिबा अपने जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कीजिए। तो ये कुर्बानियाँ चौथे नंबर पर हमने ज़िक्र किया, हमें सबक सिखाती हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करने। और वो मिल्लत क्या है? तौहीद, एक अल्लाह की इबादत। सर अल्लाह ने दिया, पेशानी अल्लाह ने दी, इसे झुकाना भी अल्लाह के सामने है। और किसी दुनिया की पावर के सामने अपनी इस पेशानी को झुकाना ममनू है, हराम है। ये कुर्बानियाँ हमें सबक सुनाती हैं। और पाँचवें नंबर पर कुर्बानी से हमें ये सबक मिलता है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मोड़ पर इत्तिबा की ज़रूरत है। और अगर हमारा किया हुआ काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के, आपके तरीके के मुताबिक नहीं, वो काम कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना ज़्यादा उसके अंदर आपने पैसा सरफ ही क्यों ना किया हो, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जुंदुब बिन सुफियान अल-बजली फरमाते हैं, पहले भी आप ये हदीस समाअत फरमा चुके हैं, ज़हयना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़हिया ज़ात यौम फ़इज़ा उनासुन क़द ज़बहू ज़हायाहुम क़ब्ल अस्सलाह। कुछ लोगों ने कुर्बानियाँ नमाज ईद से पहले कुर्बान कर दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो क्या कहा, मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाह फ़लयज़बह मकानहा उख़रा। जिसने ईद से पहले कुर्बानी कर ली वो उस जानवर की जगह एक और जानवर कुर्बान करे। तो यहाँ से पता चला कि हर वो काम हम जो करें वो सुन्नत रसूल के मुताबिक होना चाहिए। अगर सुन्नत रसूल के मुताबिक ना हो, ऐसा अमल काबिल कबूल नहीं है। कुर्बानी से यह भी हमें सबक मिलता है। और इसी तरह छठे नंबर पर ये कुर्बानियाँ हमें शुक्र का दर्स देती हैं। इतनी बड़ी नेमत तुमने इस्तेमाल की, अब अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने ये सारी बातें बयान करके क्या फरमाया, कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम, ये बड़े बड़े जानवर हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए हैं। आपने देखा नहीं, छोटे छोटे बच्चे ऊँट की मुहार पकड़कर घूम रहे होते हैं, कितना ताकतवर और मजबूत ये ऊँट जानवर है। छोटा सा बच्चा उसे अपने मुती करके, फर्मा बरदार करके जहाँ चाहता है उसे घुमा रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुसख्खर कर दिया, वगरना ये ऊँट इतना ताकतवर है, ये दसियों लोग भी इसे मिलकर काबू करना चाहें शायद इसे काबू ना कर सकते। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए चीज़ों को मुसख्खर कर दिया। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें तौफीक दी कि हम तेरे रस्ते में एक जानवर लेकर आए जो हमने कुर्बान किया। या अल्लाह तूने ही हमें तौफीक दी थी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हैं कि पला पोसा जानवर तूने हमें अता कर दिया और हम इसमें से ख़ुद भी खाएंगे, लोगों को भी खिलाएंगे। या अल्लाह हम इस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो हर मोड़ पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो इनामात हमें मिलते हैं, ये कुर्बानियाँ हमें सबक सिखाती हैं कि हर मोड़ पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया करें। सातवें नंबर पर ये कुर्बानियाँ हमें ईसार का जज्बा देती हैं कि ये गोश्त खुद ही ना खाओ, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर अतइमुल कानिअ वल मुअतर। ये गोश्त खुद भी खाओ और लोगों को भी खिलाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया बाज़ लोग ऐसे हैं जो सवाल कर लेते हैं, उन्हें भी खिलाओ, और कुछ ऐसे हैं जो सवाल से बचते हैं, उन्हें भी खिलाओ। तो ये कुर्बानियाँ हमें सबक देती हैं कि सिर्फ आपने अपने लिए नहीं जीना, बल्कि अपने इलाके में मौजूद, गली महल्ले में मौजूद जितने गरीब, नादार, यतामा, मसाकीन, बेवाएँ मौजूद हैं, उनके सर पर भी दस्ते शफ़क़त रखिए। ये इस्लाम हमें सबक देता है। ईद बहुत बड़ी खुशी का मौका है। आप देखें छोटी ईद भी है, वहाँ फितराने का हुक्म है, और बड़ी ईद पर कुर्बानियों का गोश्त
फ़ुक़रा मसाकीन को खिलाने का हुक्म है। यहाँ से क्या समझ आती है कि ये जो खुशियाँ होती हैं ना, ये इनफरादी नहीं होती, ये इज्तिमाई खुशियाँ होती हैं। सारे लोगों को साथ मिलाकर फिर खुश होते हैं। ईसार का जज्बा ये क़ुरबानियाँ हमें सिखाती हैं। और इसी तरह 8वें नंबर पर क़ुरबानी के जानवर, इन पर शफ़क़त करना, ये क़ुरबानियाँ हमें सिखाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़्ज़बह, जब तुम ज़बह करो अच्छे तरीके के साथ ज़बह करो। वलियुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु फलयुरिह ज़बीहतहु, तुम में से हर एक पर लाजिम है कि वो ज़बह करने से पहले अपनी छुरी को अच्छे से तेज़ कर दे और अपने ज़बीहे को राहत पहुँचाए, सुकून पहुँचाए। तो यहाँ से ये क़ुरबानियाँ हमें सबक देती हैं कि जानवरों पर शफ़क़त करनी चाहिए। बेदर्दी के साथ इन्हें ज़बह न किया जाए, बल्कि इन्हें राहत पहुँचाई जाए, सुकून पहुँचाया जाए। और ये सिर्फ ज़बह करते वक़्त ही नहीं, ये क़ुरबानियाँ हमें सबक देती हैं कि हर मोड़ पर, क्योंकि हमारा पैगम्बर वो सिर्फ़ लोगों के लिए रहमतुल लिल आलमीन नहीं है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, सारे जहानों वालों के लिए वो तरस खाने वाला पैगम्बर है। जानवरों पर शफ़क़त करना, तरस खाना, ये भी हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और इसी तरह 9वें नंबर पर ये क़ुरबानियाँ हमें सबक सिखाती हैं कि जब भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो, बेहतरीन माल खर्च करो। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ भी तुम नेकी को नहीं पहुँच सकते यहाँ तक कि अपना महबूब माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो। जनाब अबू तलहा अंसारी आए थे और कहने लगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आप पर कुरान पाक की आयत मुबारका नाजिल हुई है, लिहाजा बेहतरीन मेरे पास जो माल है वो ये मस्जिद के सामने वाला बाग है, मैं अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये क़ुरबानियाँ शरीयत ने क्या सबक दिया? बेहतरीन खूबसूरत जानवर अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो। ज़ाहिर है खूबसूरत जानवर के लिए ख़तीर रकम दरकार होगी। बेहतरीन अपना माल, हराम के माल से अल्लाह क़ुरबानी का जानवर कबूल नहीं करेगा, चोरी के माल से कबूल नहीं करेगा, किसी का जानवर चुरा कर ज़बह करने से अल्लाह उस जानवर को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला को खालिसतन पाकीज़ा, हलाल, तय्यब और पसंदीदा माल पसंद है। आगे बढ़िए, 10वें नंबर पर ये बात है कि ये क़ुरबानियाँ हमें जवानी की इबादत का दर्स देती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल कसीर अल्लती ला तनक़ा, ऐसा जानवर जो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हो, बिल्कुल रहा हुआ जानवर जिसकी हड्डियों के अंदर गूदा बाकी नहीं, ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। इससे क्या पता चला? बिल्कुल जवान जानवर जो अपनी जवानी के पूरे जोबन पर हो, खूबसूरती उस पर हो, ऐसा जानवर क़ुरबान करो। ये बात हमें सबक देती है कि अल्लाह तबारक व तआला को भी जवानी की इबादत पसंद है। यहाँ एक नुक्ता समझिए, बाज़ लोग कहते हैं कि नौजवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है, लिहाजा नौजवान आदमी गुनाह भी करता रहे और साथ इबादत भी करता रहे, ये इबादत अल्लाह को पसंद है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस हदीस के अल्फाज पर गौर करने की ज़रूरत है। 7 लोगों को अर्श का जो साया मिलना है, उसमें से एक बंदा क्या है? वरजुलुन शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, और ऐसा नौजवान आदमी कि जिसकी नश्व नुमा अल्लाह की इबादत में हुई है, जिसकी नश्व नुमा अल्लाह की इबादत में हुई है। दोबारा इसका तर्जुमा समाअत फरमाएं, ऐसा नौजवान जिसकी नश्व नुमा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में हुई है। बचपन में छोटे बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है, वो दूध उसकी हड्डियों की मजबूती का बायस बनता है। उस दूध पर उस बच्चे की परवरिश है, नश्व नुमा उस दूध पर वो पाता है। इसी तरह समझिए नौजवान जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में परवान चढ़ता है। ये नहीं कि जवानी में 1-2 सजदे कर ली और बस, नहीं, उसकी तरबियत, उसकी नश्व नुमा, ये सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में। मतलब क्या?
कि वो सारी की सारी अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में खपा देता है। यहाँ मुराद ये है। और 11वें नंबर पर ये क़ुरबानियाँ हमें सबक देती हैं कि हम अपनी औलाद को अल्लाह तबारक व तआला के रस्ते में खपा दें। कितने ही लोग ऐसे हैं, औलादें अल्लाह ने दी हैं, माल भी दिया है, लेकिन दुनियावी उलूम व फ़नून पढ़ाने पर अपनी औलाद को वक्फ़ कर दिया। ऐसे नकम्मे और बदकिस्मत ये लोग हैं कि अपनी औलाद को सूरतुल फातिहा भी याद नहीं करवा सके, सूरतुल इखलास नहीं आती, नमाज क्या पढ़नी है, नमाज के अंदर दुआएं नहीं आती। अपने बाप का जनाजा ऐसा इंसान नहीं पढ़ा सकता, पता नहीं अंदर क्या पढ़ना है, नहीं मालूम रोज़े के मसाइल क्या हैं, ज़कात के मसाइल क्या हैं, किस चीज़ पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, कितनी मालियत हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है, सोने का निसाब क्या, चांदी का क्या, मौजूदा करेंसी नकदी का क्या निसाब, नहीं पता किसी को। कल क़यामत के दिन अल्लाह ने ये सवाल नहीं करना कि अपनी औलाद को माल खिलाया था। सवाल वहाँ क्या होना है, अपनी औलाद की तरबियत की थी, क्यों? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम से महफूज कर लो। क्या हम अपनी औलाद को जहन्नम से महफूज कर रहे हैं? कुर्बानी का आगाज़ देखिए ना, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से क्या कहा था, मैं ख्वाब देखता हूँ कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। अपना नौजवान बेटा अल्लाह के रस्ते में कुर्बान करना शुरू कर दिया। ये है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और ये जज्बा आज भी चाहिए। अल्लाह के रस्ते में हम अपनी औलाद को वक्फ कर दें। इन्हें कुरान आना चाहिए, पूरे कुरान का तर्जमा हर मुसलमान को याद होना चाहिए, पूरे कुरान की तफसीर हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि उसे याद हो, बुनियादी अहादीस हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि उसे याद हो। किसको याद है? अल्लाह के लिए आज ही अपने आप को और अपने घर वालों को इस्लाम के नाम पर वक्फ कर दीजिए, इस्लाम के नाम पर वक्फ कर दीजिए। इस्लाम के बुनियादी मसाइल हर एक को आने चाहिए। ये कुर्बानी हमें सबक देती है। और 12वें नंबर पर ये कुर्बानियाँ हमें सबक देती हैं कि तुम खुद भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाओ। और ये कुर्बानी कौन सी है? इसका मफ़हूम बहुत वसी तर है। ये कुर्बानी जिस तरह अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ कि हम अल्लाह के रास्ते में वक्फ हो जाएं, इसका मफ़हूम बहुत वसी है। अल्लाह के लिए जब हम वक्फ हो जाएंगे, कहीं पे ज़रूरत है दावत की, तबलीग की, हम वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को सर्फ कर दें। कहीं जिहाद के मैदान में हमें ज़रूरत है, अल्लाह के दीन को ज़रूरत है दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ने की, हम वहाँ अपने आप को सर्फ कर दें और अपनी जान का नजराना पेश कर दें। गोया दीन के हर काम के लिए हम अपने आप को वक्फ कर दें, कुर्बान कर दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में बेटा मिला, ख्वाब में कहा गया इसे ज़बह कर दो, ज़बह करना शुरू कर दिया, तैयार हो गए ज़बह करने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। इसके साथ ही 13वां सबक ये है कि ये कुर्बानियाँ हमें बाज़ आर्जी पाबंदियों के साथ मुस्तक़बल का सबक सिखाती हैं। ये जो 10 दिन हैं, बाल काटना मना है, नाखून तराशना मना है। कितने ही लोग ऐसे हैं, दाढ़ियाँ मूंडने वाले, दाढ़ियाँ काटने वाले, ख़त करवाने वाले, दाढ़ियों की काट छांट करवाने वाले इन अय्याम में रुके हुए हैं। क्यों? क्या शैतान ने मना किया है? नहीं, रहमान ने मना किया है। तो क्या बकिया अय्याम में दाढ़ी काटने से रहमान ने मना नहीं किया? ये लम्हा फ़िक्रिया देने के लिए है कि हज़रत इंसान, इन 10 दिनों में अगर तू अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से रुका रहा तो बकिया अय्याम में भी रब वही है, बकिया अय्याम में भी शरीयत वही है। मत समझे कि ये छोटा गुनाह है, मत समझे ये छोटा गुनाह है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत को अल्लाह मुआफ़ कर देगा, लेकिन जो सबके सामने गुनाह करते हैं इन्हें कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी।
सबके सामने गुनाह करना इसकी मुआफ़ी नहीं है, और ये गुनाह सबके सामने किया जा रहा है। अग़ियार ने तो खाके बनाए मेरे नबी के, मुसलमानों ने क्या कमी की है? अपनी शक्ल इस्लामी आज तक नहीं बना सका। 70 साल उम्र हो चुकी है, आज तक शक्ल इस्लामी नहीं बन सकी। 80 साल का हो चुका है, 40 साल उम्र हो चुकी है, आज तक इसे इस्लाम समझ नहीं आ सका। और झूठ कहता है ये कि मैं मुहिब्बे रसूल हूँ। हम नहीं मानते आप मुहिब्बे रसूल हैं। उस्ताज़ गिरामी हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह के पास एक आदमी आया, दाढ़ी मुंडवाई हुई है, और बातों बातों में कहने लगा, जी मुझे नबी अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी मोहब्बत। हाफ़िज़ साहब ने फरमाया, आप झूठ बोलते हैं। तकलीफ़ होती है ना कि ये कौन होता है मुझे कहने वाला कि तुम्हें नबी के साथ प्यार नहीं। दोबारा कहा, जी नहीं मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाफ़िज़ साहब ने फरमाया, झूठ बोलते हो। तीसरी बार फिर ये बात हुई, हाफ़िज़ साहब ने फरमाया, झूठ बोलते हो। तुम कैसे ये दावा कर सकते हो, तुम्हारा तो चेहरा नबी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला, मौका होता है ना, समझ दे दी, दाढ़ी रख ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए थे जिनकी दाढ़ियाँ नहीं थीं। इस बात को तवज्जो के साथ सुने, जिनकी दाढ़ियाँ नहीं थीं, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक चेहरा ऐसे लोगों से फेर लिया। आज अगर कोई आलिम ऐसा करें, मुझे बताएं, हम उसके बारे में क्या कुछ नहीं कहेंगे? बड़ा सख्त मौलवी है ये, इसे तमीज़ नहीं है, इसे अखलाकियात नहीं है। मैं बात करने आया, इसने अपना रुख ही फेर लिया। पैगम्बर के बारे क्या कहेंगे? पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मुबारक चेहरा पीछे कर लिया ऐसे लोगों से। और कल क़यामत के दिन किस मुंह के साथ वहाँ पे हौज़े कौसर पे आओगे, अगर वहाँ प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख फेर लिया? बहुत बड़ा गुनाह है, तौबा कीजिए। मत समझें कि जैसे ही कुर्बानी होगी, नमाज़ ईद पढ़ के जाएंगे और फौरी तौर पर जाते सबसे पहले दाढ़ी को हल्का फुल्का करवाएंगे या बिल्कुल इसे मुंडवा लेंगे। आप हराम काम का इर्तिकाब कर रहे हैं, और ये छोटा गुनाह नहीं, पहले भी ये बात मैं जिक्र कर चुका हूँ। चौथवा सबक ये है, कुर्बानियाँ हमें सबक देती हैं कि जिस तरह तुम हमें मंडियों में ख़रीदते वक्त चेक करते हो, कहीं काना तो नहीं, लंगड़ा तो नहीं, बीमार तो नहीं। हाँ ए हज़रत इंसान, तुम्हें भी काना नहीं होना चाहिए, तुम्हें भी लूला लंगड़ा नहीं होना चाहिए कि हर बात को शरीयत समझकर उस पर अमल शुरू कर दे। जिसके सामने चाहा उसको सजदा करना शुरू कर दिया। नहीं, तेरा अकीदा लूला लंगड़ा नहीं होना चाहिए, तू भी सहीउल अकीदा सालिम मुसलमान होना चाहिए। और इसके साथ ही आखिरी सबक ये है, 15वीं बात ये है कि ये कुर्बानियाँ हमें सबक देती हैं कि तुम ये छुरी मेरे गले पर नहीं, अपनी मनमानी पर, अपनी ख्वाहिश नफ्स पर छुरी चला रहे। बकरी के गले पर छुरी जो चलाई जाती है, ये दर हकीकत इंसान के अंदर जो मैं है ना, एक बकरी मैं करती है, एक इंसान मैं करता है। इंसान मैं करता है। आप समझाओ बात, तुम कौन होते हो? मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये किया। मस्जिद में फुला मसला तूने बयान क्यों किया? अगर मेरा सूदी लेन देन था, तूने सूद के खिलाफ बात क्यों की? मैं मस्जिद में चंदा देता हूँ, मैं मस्जिद बनाने वाला। ये जो मैं है, सारा साल ये मैं करते रहते हो, छुरी इस पर चलाने की ज़रूरत है। ये मैं हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है, इस मैं पर छुरी चलाने की ज़रूरत है। तो ख्वाहिश नफ्स जो है, ये वो ख्वाहिश है कि जो शरीयत के मुकाबले में तागूत की कैफियत इख्तियार कर चुकी है। इस ख्वाहिश नफ्स पर छुरी चलाने की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। खुद गर्जी है लोगों में, बखीली है, मुफ्त खोरी है, हराम खोरी है, फजूल खर्ची है, रियाकारी है, दीगर बड़े बड़े गुनाह हैं। ये सारे के सारे जो गुनाह हैं, ये इंसान की ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश पर छुरी चलाने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, बारी ताला सही मानों में कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है, कुर्बानी की जो रूह है,
ये हमें समझने की तौफीक अता फ़रमा दे। कितनी क़ुरबानियाँ ऐसी आ चुकी हैं, कितनी बड़ी ईदें गुज़र चुकी, लेकिन जैसे हम पहले थे आज भी वैसे। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ हम पैदा करें। अल्लाह ताला से दुआ है बारी ताला हक़ बात को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। होने 6 बजे ईद तो गोश्त का सीजन होता है, जिन्होंने को पता है मुस्तक लोग सलाह कर दें गोश्त पहुँचाने तो जिन्होंने को गोश्त हो इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। ये एक सवाल है, तकबीरात के मुताल्लिक पूछना था जो ईद वाले दिन पढ़ी जाती हैं, क्या ये इन 10 दिनों के अंदर भी पढ़नी हैं? तकबीरात ईद जो हैं, ज़्यादातर मारूफ़ बात हमारे यहाँ यही चलती आ रही है कि जैसे ही चाँद नज़र आए साथ ही तकबीरात शुरू कर दी जाएँ। इसलिए आपने देखा होगा कई बाज़ारों में भी बाज़ हज़रात तकबीरात का अहतमाम करते हैं, लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है किसी भी सही हदीस से ये तरीक़ा नहीं मिलता। बाज़ारों में तकबीरात कहने का जो तरीक़ा है, लोग इसको सुन्नत रसूल समझ कर करते हैं, जबकि सुन्नत रसूल नहीं है। सहीहुल बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, लेकिन ये तालीकन रिवायत है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद के साथ ये रिवायत बयान नहीं की। और वो रिवायत क्या है? अब्दुल्लाह इब्न उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, ये दोनों सहाबाए किराम मिना के बाज़ारों में निकलते और वहाँ बुलंद आवाज़ के साथ तकबीरात कहते थे। तो यहाँ से ज़्यादा ये बात साबित होती है कि मिना के बाज़ारों में वहाँ हाजी लोग जो हैं वो अगर तकबीरात कह लें तो ये उनके लिए है। यहाँ हमारे लिए बुलंद आवाज़ के साथ तकबीरात का सही हदीस से सबूत कोई नहीं मिलता। अगरचे आप कह सकते हैं जी हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से तो हम भी देखते आ रहे हैं, लेकिन शरीयत में सही हदीस में इसका कहीं सबूत आज तक हमें मिल नहीं सका। अब रही बात कि सुन्नत तरीक़ा है क्या? सुन्नत तरीक़ा ये है कि ईद की रात से लेकर इन तकबीरात का विर्द जो है वो शुरू हो जाता है और अय्याम तशरीक जो हैं उन तक, अय्याम तशरीक एक तो यौमुन नहर हो गया ना, क़ुरबानी का जो दिन है, इसके बाद 3 दिन मज़ीद हैं 11, 12 और 13 तारीख़, इन्हें अय्याम तशरीक कहा जाता है। तो अय्याम तशरीक जो हैं इनमें अल्लाह तबारक व तआला का जिस तरह सूरतुल हज में है वयज़्कुरुस्मल्लाह फ़ी अय्यामिन मालूमात, और मालूम दिनों में वो अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। तो मालूम दिनों से मुराद अय्याम तशरीक हैं। गोया ये 4 दिन जो ईद के दिन, ये 4 दिन बन गए। ईद के दिन भी 4 हो गए, ज़बा के दिन क़ुरबानी के भी 4 दिन हो गए और तकबीरात पढ़ने के भी ये 4 दिन हो गए। और यहाँ एक मज़ीद बात ये याद रखें कि बुलंद आवाज़ के साथ तकबीरात कहना, इसका सबूत भी कहीं नहीं मिलता। मख्फी अल्फाज में ही इन तकबीरात का विर्द जो है वो किया जाएगा। एक दूसरी बात की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है कि आज 8 ज़ुल्हज्जा है। कल इंशाअल्लाह पाकिस्तान में और गिरदो नवा ममालिक में 9 ज़ुल्हज्जा है। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सियाम यौम आरफा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्ला व सनत अल्लती बअदा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरफा के दिन का जो रोज़ा है, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा ये दिन बना देगा, ये रोज़ा कफ़ारा बना देगा, 2 साल के गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया बना देगा, एक गुज़श्ता साल और एक आइंदा साल। तो कल यौम अरफा है हमारे यहाँ, लिहाजा तमाम अहले इस्लाम से गुजारिश है कि वो ये रोज़ा रखें और अपने बच्चों को भी ये रोज़ा रखवाएँ।
ये तलक़ीन करें। आज से अगर ये आप रोज़ा शुरू कर देते हैं, आपके बच्चे शुरू कर देते हैं, 70 साल तक भी जब वो ये रोज़ा रखते रहेंगे, इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी के सारे गुनाह साथ साथ अल्लाह ताला मुआफ़ करता रहेगा। तो ये बहुत अज़ीम अमल है, हाजी मैदान अरफ़ात में होते हैं, ये बहुत अज़ीम अमल है। बाकी रही बात यहाँ पे बाज़ के इख्तिलाफ़ भी है कि हम पाकिस्तान के हिसाब से करेंगे या सऊदीया के हिसाब से। इसका जवाब बड़ा आसान सा ये है, वो ममालिक जिनके यहाँ सऊदीया से एक दिन पहले ईद हो जाती है, जैसे बरतानवी ममालिक, तो वो फिर अरफ़ा का रोज़ा कब रखेंगे? जिस दिन हाजी मैदान अरफ़ात में है उस दिन उनकी तो ईद होगी, तो क्या वो ईद वाले दिन रोज़ा रखें? नहीं। इसलिए अपने अपने मतला का एतबार करते हुए ये रोज़ा रखा जाएगा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।